Good afternoon, everyone. Myself, CA Rahul Gautam, Secretary, Asansol Branch of EIRC. Welcome to this seminar on vibe coding with generative AI. Before I introduce the topic and our speaker, I have been requested to tell and request the members to please visit the expo areas also, where companies have come for and stalls have been there, to please explore that area also. Now coming to the topic, generative AI has changed the way we develop software, turning coding into more intuitive, conversational and creative experience. In this session, we will explore how AI can accelerate development, enhance creativity, act as a powerful partner in solving problems and building applications. Whether you are new to coding or experienced, today we will give you a fresh perspective on how AI can transform the way we think and create. Thank you for joining. Now, I would like to call on stage our speaker for the topic, CA Vivek Agarwal sir. Please have a round of applause. Sir is a fellow chartered accountant and a recognized expert in AI data analytics, Ind AS, forensic auditing and automation-driven finance. He has delivered 1,000+ sessions across India, trained auditors of key government bodies, contributed to various ICAI boards, and played a pivotal role in integrating AI into accounting and assurance practices. His work focuses on transforming financial reporting and audit quality and process automation for greater accuracy and strategic value. Thank you, sir, for this session today. Now I would like to welcome CA Tapas Majumdar, sir, Chairman, Asansol Branch of EIRC, to please come on stage and felicitate CA Vivek Agarwal, sir. Please have a huge round of applause for sir. Now over to sir for the session. Thank you. Friends, first and foremost, how you all are liking this session of AI for last 1.5 days? हाँ, main hall में ही होगा. And please join your hands together for two great personalities over here, Sumit Bihani and Shyam Agarwal, जिसने ये पूरा course design किया है coding का. Because I'll tell you, we were अपटेन शिफ्ट चेयरमैन भी बोल रहे थे विवेक 40-50 आदमी आएंगे छोटा रूम कर लेते हैं. But see the people over here, and this session is about vibe coding. So anyone over here who can tell you what is vibe coding? क्या होता है vibe coding? कोई भी vibe coding होता क्या है? Vibe coding वही होता है. It is that what you have been doing since yesterday, where you know the input, you know the output. बचपन में पढ़े थे ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग. इनपुट मालूम है, आउटपुट मालूम है, उसका रूल्स, उसका कोड्स एआई लिखता है. So I have some samples for you in respect to vibe coding. Sumit has shown some vibe coding on HTML. There are vibe coding on Python जो कल भी हुआ था. रेणु जी ने सिखाया था, अभिषेक ने बताया था, श्याम ने बहुत कुछ डिस्कस किया जेनेटिक एआई के ऊपर. Vibe coding is also there on a day-to-day work. Like people are saying मैं गामा यूज करता हूँ PowerPoint presentation के लिए, but you can also do vibe coding via ChatGPT and make a presentation. But विवेक ये सब ठीक है, अच्छा लगता है, कुछ काम की बात बता. आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे बताओ. How many of you have ever seen Form 26AS? कितना अच्छा हो, हर ट्रांजैक्शन एक रो में एक्सेल में आ जाए. विवेक एक्सेल में 26AS डाउनलोड होता है, but each transaction has 2 lines, not a single line. So we will see by vibe coding how you can make a Python code whereby you just upload the 26AS PDF file and you'll get a very good, well analyzed
26 AS Excel file, and you will get the Python code also. How many of you have ever never used Python? कोई Python कभी यूज नहीं किया? I'll tell you, Python 5 मिनट का चीज है और आप सब यूज कर सकते हैं. आप लोग रजिस्टर किए हुए हैं. You have registered for Python by using Gmail. Gmail अकाउंट सबके पास है मोटा मोटी. There is a website called Google Colab. Google Colab. Google Colab चालू करना और बंद करना आना चाहिए. बीच का काम जेनेटिव AI. बीच का काम जेनेटिव AI. How many of you are using Excel? Excel में बहुत बार चेकलिस्ट बनाना पड़ता है हम लोग को. जैसे few days back I was making a checklist on related party. How I make that? I uploaded नेफ्रा का जो रिपोर्ट्स आया था, लार्ज फर्म्स का इंस्पेक्शन था, उसमें रिलेटेड पार्टी का क्वेश्चंस थे, रिलेटेड पार्टी का ऑब्जर्वेशंस थे. आई अपलोडेड दैट एंड सेड टेल मी द ऑब्जर्वेशंस ऑफ द अनरिलेटेड पार्टी बाय दिस नेफ्रा रिपोर्ट्स. नाउ टेल मी व्हाट आई एम सपोज्ड टू चेक एज एन ऑडिटर इन रिलेटेड पार्टी एंड गिव मी अ डिटेल्ड समरी ऑफ दैट. देयरआफ्टर मेक अ एक्सेल शीट, गिव मी समरी एंड फॉर ईच एरियाज गिव मी अ डिफरेंट शीट्स. वो आपको एक VBA कोड देगा. पहले हम लोग जब VBA कोड करते थे तो गूगल में हम लोग को सिखाया जाता था 15 साल पहले, गो एंड राइट गिव मी VBA कोड टू डू दिस, गिव मी VBA कोड टू डू दैट. आजकल वही हम लोग जेनेटिव AI से करते हैं. और HTML भगवान हम लोग के लिए. क्यों? हमारे सुमित भाई ने हमारे टैक्स ऑडिट के समय में हमें बताया था कि PF ESI के चालान से कैसे हम CSV के फॉर्मेट में डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं जो हम टैक्स ऑडिट में अपलोड कर सकते हैं. सो HTML कोड्स, एजेंटिक AI, कल श्याम भाई ने डिस्कस किया एजेंटिक AI. वी कैन मेक अ कंप्लीट वॉक थ्रू ऑफ एजेंटिक AI. सो हाउ मेनी ऑफ यू डू इंडिविजुअल रिटर्न फाइलिंग्स? इंडिविजुअल का काम करना पड़ता है. हम लोग छोटे शहर में रहते हैं. कलकत्ता में छोटा शहर है अभी बॉम्बे के मुकाबले. लाहौर के लोग बोलते हैं कलकत्ता बड़ा है, हम बोलते हैं बॉम्बे बड़ा है. डिफरेंस यही है. तो क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट होता है. यू हैव गॉट 12 month स्टेटमेंट ऑफ क्रेडिट कार्ड. ईच क्रेडिट कार्ड हैज 4 or 5 लाइन व्हिच इज यूजफुल टू. कोई हमें 12 महीने का क्रेडिट कार्ड में पासवर्ड डाल के सिंगल PDF दे दे और उसमें से एक्सेल में खाली ट्रांजैक्शन निकाल के दे दे. वो 4 पन्ना क्रेडिट कार्ड में 4 लाइन काम का, वो 4 लाइन मुझे दे दे तो मजा आएगा. तो आज ये 2 दिन हम लोग देखेंगे. एंड माइंड यू, ये 1.5 दिन हम लोग ने आपको AI नहीं सिखाया. वी आर नॉट हियर टू टीच यू एजेंटिक AI, neither Python, neither HTML. We are here to tell you there is something like this. Please go home. Please check out. आज के युग में 15 साल पहले नहीं था. आज के युग में सब कुछ नेट में है. जो आप 13 घंटा 2 घंटा इंस्टाग्राम में रील्स देखते हैं, आप एजेंटिक AI के ऊपर देखिए, पाइथन के ऊपर देखिए, वही रील्स आपके लिए आएगा एंड वो आपको हेल्प भी करेगा. And how many of you are using over here SAP? कोई भी SAP का क्लाइंट, कोई क्लाइंट बहुत जल्दी मतलब एक SAP वाला बात नहीं होता है, टैली चल रहा है. SAP के साथ you can integrate Python and do wonders. Like I'll try and show you a workflow also. Although I can't give a live demo, I'll show you the workflow. You have the access to the database. I have to download the purchase orders. For each purchase order, every time I have to go and open and download it. But you can run a script from SAP, download 300 POs in a folder, and from that 300 POs, you can extract 300 rows in Excel sheet within 10 minutes. This I use in lots of forensic stat audits, and it has actually changed my life because Python is the language like English was yesterday. That is what I feel. Moving forward to the presentation, vibe coding is nothing but writing something, getting an output without knowing how it has worked inside. Input मालूम होना चाहिए, output मालूम होना चाहिए. And you know, someone told data is the next oil. किसने बोला ये? मुकेश अंबानी. उसमें एक लाइन और ऐड किया जाए. If data is the new oil, then code is the new currency. Together they form the new economy. Fact of life. And विवेक, लोग बाग बोलते हैं मैं AI नहीं सीखूंगा तो क्या होगा? AI क्या जॉब ले लेगा हम लोग का? हमें बेरोजगार बना देगा?
लेट्स सी एआई क्या करेगा. What I want to know is, what is one thing which AI can't copy from humans? Which I would like to know that. What kind of a thing would it be that humans can do but AI can't? Yeah. And Yeah, actually, it's an excellent question, and in fact, this is probably the single most vital question for now, which is what are all the things that AI can do? What can it do? It turns out that as we speak, AI has no possibility of doing all of what we do. However, depending on the jobs that we do, sometimes 20% of our jobs, 20% of our work, 1,000 times better. For some people, it might be able to do 50% of their job 1,000 times better. But in no job can they do all of it. And so this is the great observation. Because of that, every one of us should apply AI to automate, to become an assistant to help us with that either 20%, 40%, or 50%. People ask me, you know, Jensen, is AI going to take your job? And I tell them, absolutely not. The person who uses AI to automate that 20% or 50% is going to take your job. And so So AI will not take the job, but जिसको AI आता है वो आपका जॉब ले सकता है. तो फर्स्ट होमवर्क फॉर एवरीवन, ऑफिस जाइए, घर जाइए, नोट डाउन करिए क्या क्या रिपीटेटिव काम हमारे ऑफिस में होता है, क्या काम हम डेली करते हैं जो रिपीटेटिव है. जैसे अगर कोई टैली में काम करता है तो डेली एक रिपोर्ट डाउनलोड करता है, उससे कुछ बनाता है. कोई SAP में काम करता है, FBN वाले FBN 5N से डेटा डाउनलोड करता है, एक रिपोर्ट MIS बनाता है, एजिंग ऑफ वेंडर्स एंड क्रेडिटर्स बनाता है, क्लियरिंग अकाउंट बनाता है. सो व्हाट आर द रिपीटेटिव वर्क व्हिच यू आर डूइंग, राइट डाउन दोस, एंड फॉर ईच ऑफ द रिपीटेटिव वर्क हैव अ वर्कफ्लो. क्या क्या स्टेप्स हम करते हैं एंड हाउ वी कैन ऑटोमेट दैट. सो it's all about transition. That's why everyone is here, and we have to adapt the change. Why? क्योंकि कल तक जब ऑडिट टीम जाती थी उसमें आर्टिकल्स होते थे, मैनेजर्स होते थे, स्टाफ होते थे, मगर अब ऑडिट टीम चेंज हो रहा है. विवेक क्या चेंज हो रहा है ऑडिट टीम में? पहले की ऑडिट टीम इस तरह से होती थी, टैक्स एक्सपर्ट, मैनेजर, स्टाफ 1 2 3 4 एंड द ऑडिट पार्टनर. अब क्या चेंज हो रहा है? अब ये सब नए नए आ रहे हैं. कौन? वाइट कोडर, read it as a white coder, audit data center expert, data analytics expert, and cyber security expert. All this will be required whether it's a small firm, large firm, it has to be there. And let's understand white coding first. क्या बेसिक्स होते हैं? कल से लेके अभी तक आप लोगों ने जो भी किया है, that is white coding. मतलब राइट इंस्ट्रक्शन इन इंग्लिश, कल से वही दिखा रहे हैं, इंग्लिश में लिख रहे हैं या बोल रहे हैं. नो पाइथन सिंटेक्स रिक्वायर्ड. नहीं जानना है कौन सा मॉड्यूल काम करता है, क्या उसके अंदर कॉन्सेप्ट है, हमें नहीं जानना है. हमें क्या चाहिए? मेरा काम होने से मतलब है. एट द एंड ऑफ द डे वर्क इज वर्शिप. डिस्क्राइब AI जनरेटेड स्क्रिप्ट, फास्टेस्ट ऑटोमेशन रूट फॉर CAs. हमारा लाइफ कुछ ऐसा नहीं होगा, हमें इंजीनियर्स नहीं बनने हैं, हमें कोडिंग्स नहीं करने हैं. क्यों? क्योंकि थिंग्स आर चेंजिंग. व्हाट्स हैपनिंग? There's something called traditional coding and there's something called white coding. And how this is changing? हमारा लाइफ, ये मुझे याद दिलाता है, एक मूवी था रॉकेट सिंह, उसमें जो कंप्यूटर बनाता था वो ऐसे कुछ करता था. लाइफ कैसे चेंज हो रहा है? ट्रेडिशनल कोडिंग, नीड सिंटैक्स, स्लो टेक्निकल, हार्ड फॉर नॉन टेक, रिक्वायर्स डिबगिंग. आपको बता दें जितने भी IT कंपनीज हैं, TCS, Infosys, इनका मेजर रेवेन्यू डिबगिंग से आता था, जो आजकल AI से हो रहा है, जो आजकल AI से हो रहा है. तो विवेक, ये ट्रेडिशनल कोडिंग तुम बता दिए, वाइट कोडिंग बता दो थोड़ा. वाइट कोडिंग में यू हैव नेचुरल लैंग्वेज, इंग्लिश में बात करते हैं हम लोग कि ये बना के दो, वो बना के दो. फास्ट एंड इंट्यूटिव, नहीं बना भैया ये चेंज कर दो, भैया इसमें ये ऑप्शन डाल दो, भैया इसमें ये ऑप्शन डाल दो. बिल्ड फॉर डोमेन एक्सपर्ट. हु इज अ बेटर डोमेन एक्सपर्ट देन अस? आज हमें मालूम है टैक्स ऑडिट पे कहाँ क्या डालना है, आज हमें मालूम है MIS की रिपोर्ट क्या बनानी है, आज हमें मालूम है पावर BI में क्या रिपोर्ट चाहिए, आज हमें मालूम है एक स्टॉक को कैसे एनालाइज करना है. AI handles debugging itself. And foundation, reading Excel, CSV, pandas, manipulation,
visualization, rules and validation, and automated exports. क्या वर्कफ्लो होता है, क्या रिक्वायरमेंट है? आज आप कोई सॉफ्टवेयर बंदे को भी रखते हो, इंजीनियर को रखते हो, व्हाट यू डू? यू से बॉस, आई रिक्वायर दिस सॉफ्टवेयर, दिस आर द थिंग्स व्हिच आई एम लुकिंग इनटू इट, दिस इज हाउ इट शुड वर्क, ये डालने पे ये देना, ये डालने पे ये देना. सेम चीज हिंदी, इंग्लिश, बांग्ला, जो लैंग्वेज आता है उसमें लिखिए, वही बोलिए उसको कि भैया ये चाहिए, इसमें ये फीचर्स होना चाहिए, ये फीचर्स होना चाहिए, ये फीचर्स होना चाहिए. एआई कोड जनरेट करता है, स्क्रिप्ट को रन करिए, रिव्यू करिए आउटपुट को, फिर रिफाइन करिए एंड स्क्रिप्ट को सेव करिए. बी स्पेसिफिक, गिव रूल्स क्लियरली. इसके बाद ये, इसके बाद ये. कल जैसे बहुत अच्छे से रेणु जी ने बताया कि कैसे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नोट में एसटीटी होता है, ब्रोकरेज होता है, उसको कैसे एलोकेट करना है. तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट यू वांट टू बी डन, मेंशन आउटपुट फॉर्मेट, वेरी इंपॉर्टेंट. आउटपुट मुझे पाइथन में चाहिए, वो पाइथन का स्क्रिप्ट मुझे कहाँ रन करना है, VS स्टूडियो में रन करना है, गूगल कोलैब में रन करना है. विवेक आउटपुट निकला था, रन नहीं हो रहा था. आपने बताया कि वो VS स्टूडियो के लिए था, गूगल कोलैब के लिए था, या जुपिटर के लिए था. ऑल आर सेम लैंग्वेज, मगर SAP भी इंग्लिश अकाउंटिंग समझता है, ERP है, जोहो भी ERP है, एंड ओरेकल भी ERP है, मगर तीनों के कोडिंग्स अलग होते हैं. सिमिलरली पाइथन इज अ लैंग्वेज. Various platforms use various ways of working with Python. And how to use white coding, कहाँ का यूज कर सकते हैं? विवेक यही तो चाहिए. बताओ कल से क्या पढ़े? Python script automation for Excel, Excel formulas, Excel VBA macros, SQL queries, HTML templates, JavaScript snippets, Google App scripts, Power BI. मुझे पावर बीआई में कोई रिपोर्ट बनाना है, टैली से डेटा पुल करके, ODBC अभी सुमित जी ने बताया वहां से, उसका मुझे कुछ नहीं करना है. मैं टैली प्राइम यूज करता हूं, मुझे ये रिपोर्ट डैशबोर्ड बनाना है पावर बीआई में, उसके लिए मुझे कोड दीजिए. RPA लाइट ऑटोमेशन, पहले स्पीकर हमारे प्रदीप जी ने RPA के बारे में बोला, उसको लाइट वर्जन लाइक UI पाथ एंड ऑल, हाउ टू यूज इट. API इंटीग्रेशन, आजकल जेमिनी में वो प्रो VO Pro चल रहा है 3, उसमें API इंटीग्रेशन होता है. सो आई कैन टेल यू, टिल yesterday you were learning white coding but not knowing that it is called white coding. CA को क्यों सीखना चाहिए? इसलिए रिपीटेटिव काम को ऑटोमेट करिए, एनालाइज ह्यूज डेटाबेस. आई विल टेल यू, हाउ मेनी ऑफ यू डू बैंक ऑडिट्स? कुछ लोग करते हैं. अब सोचिए, हर साल जाते हैं, 3 साल के लिए बैंक ऑडिट मिलता है, हर साल जाते हैं, इनपुट फिक्स है मेरा, मैं टैक्स स्क्रिप्ट किया वो फिक्स है, आउटपुट क्या चाहिए वो भी फिक्स है. जस्ट गिव अ सैंपल कि ये मेरे हेडर्स है इनपुट, ये मेरा हेडर्स है आउटपुट, इसके लिए मुझे एक पाइथन का कोड दे दो भाई. एंड सर्वर नहीं चाहिए, छोटा सा स्क्रिप्ट है, मुझे इसका HTML का कोड दे दो. इनपुट फिक्स है, आउटपुट फिक्स है, उसको अब प्रोसेसिंग, क्लीनिंग, रनिंग कुछ नहीं करना है, वो हमारे लिए पाइथन करेगा, वो हमारे लिए HTML करेगा. Wherever input is known, output is known, जो काम मेरा स्टाफ, CA, आर्टिकल, पार्टनर, जूनियर पार्टनर जो भी करता हो, वो वाइट कोडिंग कर सकता है. हाई इम्पैक्ट एरिया कहाँ का? सब जगह यूज हो सकता है. I went for a forensic audit of an edible oil company where I was supposed to check the calorific value of coal, moisture content, and there was a QC report, quality check का report होता है, and I got 365 reports per year, 3 साल का 1035 रिपोर्ट. मैंने अपने बच्चे को बोला भैया इसको टाइपिंग करना होगा. My article says भैया पाइथन है ना. Just he made a code via ChatGPT, ran 3 मिनट में 1035 QC रिपोर्ट्स 1035 लोग में आ गए एक्सेल में. That is the power of white coding. Ledger cleaning, aging and reconciliation, MIS automation, very useful. MIS automation, क्लाइंट का बहुत सारे शेयर्स हैं, मुझे मालूम करना है आज तक कितना डिविडेंड इशू हुआ है, कितना मार्क टू मार्केट है जिसको फेयर वैल्यू टू फेयर वैल्यू टू पे करना है अगर इंडेक्स के अंदर,
ये mark to market करना है. I'll show you that demo of share also, and maybe I can take some time of your from lunch also. Predictive analysis. Asian Paints आज तक जीवित कैसे था? Predictive analysis. कौन से स्टोर में कौन सा रंग का कौन सा कोड कितना बिक रहा है उसके हिसाब से वो रिप्लेनिश करता था. वही अभी बिल्डा वापस चालू कर किया है कि भैया आपने माल खरीदा, स्कैन करिए, अपडेट करिए, आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा अगले मंथ. डेटा इज द ऑयल. प्रेडिक्टिव एनालिसिस. हार्डवेयर अकाउंटेंट होके ये सब सोचिए. सेल्स रजिस्टर का इनसाइट निकालना है, सेल्स रजिस्टर को रिव्यू करना है. विल शो यू अ डेमो. बैंक स्टेटमेंट रिकंसिलिएशन, जीएसटी 2 वर्सेस बुक्स, एक्सेप्शन आइडेंटिफिकेशन, कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कस्टमाइज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वाउचिंग ऑटोमेशन, जीएसटी मिसमैच, वन सेट, क्लीन लेजर, रिमूव डुप्लीकेट्स, एंड ऑल दिस स्टफ कैन बी डन वाइट कोडिंग. ये हमारे सम ऑफ द केस स्टडीज है जो हम लोग करेंगे अभी. पीडीएफ का मतलब बहुत इजी है. रिमूव डुप्लीकेट्स, क्रिएट चेकलिस्ट, टैक्स ऑडिट हेल्पर जो मैंने आपको बताया, पीएफ चालान एक्सपेक्टर, ईएसआई चालान एक्सपेक्टर्स, क्रेडिट का स्टेटमेंट्स, क्या क्या यूज करेंगे. बेसिक्स, चैट जीपीटी, क्लाउड एआई. किसी ने यूज किया क्लाउड एआई? क्लाउड एआई सुपर सॉफ्टवेयर. कर्सर इज वेरी गुड फॉर कोडिंग. गूगल कोलैब पावर्ड विद जेमिनी. गूगल कोलैब में पाइथन का कोड लिख रहे, एरर आया, बगल में जेमिनी है, पूछो भैया क्या गलती हो, ठीक करो. डिबगिंग अपने आप होती है जेमिनी से. सो व्हाट इज द कॉन्सेप्ट? We have to learn AI fast. We have to learn AI as soon as possible. And remember, nothing or no one can replace an auditor's knowledge, judgment, and professional skepticism. But yes, AI can act as a catalyst. So let's move to some practical demos. Are you all with me? देखते हैं AI का जादू. पहला, अभी मैं वहाँ बैठा हुआ था तो मुझे एक मन किया एक छोटा सा क्लाउड में लिखने का. मैंने ये लिखा, मैं कोड भी दिखा दूंगा आपको कि भैया 30 साल एक्सपीरियंस, फ्रंट एंड बिल्डर हो, जनरेट अ सिंगल सेल्फ कंटेंट HTML फाइल, नो एक्सटर्नल बिल्ड टूल्स, फॉर अ ब्राउजर ओनली, EIRC लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट जनरेटर, कलेक्ट पेमेंट डिटेल्स. इसने क्या मुझे दिया? उसने मुझे ये दिया, एग्रीमेंट एंड पार्टी डिटेल्स, डेट ऑफ एग्रीमेंट, इफेक्टिव डेट, लाइसेंसर नेम, लाइसेंसर एड्रेस, श्याम अग्रवाल, लाइसेंसर ऑथराइज सिग्नेटरी, लाइसेंसी नेम AI कंसल्टेंट, लाइसेंसर ऑथराइज सुमित बिहानी, लाइसेंसर पैन कार्ड उसका नहीं है, प्रीमाइसेस एंड टर्म्स अननोन, लाइसेंस फी 1 लाख रुपया, 11 महीने का लाइसेंस. जनरेट अग्रीमेंट, ये अग्रीमेंट को जनरेट किया. विवेक इससे क्या कर सकते हैं? हम जो मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं, हम जो इनवॉइस बनाते हैं, हम जो अपना क्लाइंट के साथ एंगेजमेंट लेटर बनाते हैं, एनीथिंग एंड एवरीथिंग कैन बी ऑटोमेटेड. जस्ट से ये फील्ड्स डालने हैं, ये फील्ड्स फिक्स्ड है, एंड दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड. इसको आप एज ए HTML सेव करिए, कॉपी पेस्ट करके उसको एज अ PDF बनाइए, उसको आप कोई भी चीज में यूज करिए. वेरी इजी, वेरी यूजफुल. विवेक, वो तुमने क्लाउड AI बोला, उसमें लिमिट्स है. सर जीमेल अकाउंट्स की कमी है क्या? पैसा नहीं लगाना है. अभी पहले नेट प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं, फ्री में यूज करिए, यू विल एंजॉय इट. सो दिस इज द आउटपुट. उसने दिया पैन कार्ड नंबर, लाइसेंस, वेयरएज, ग्रांट ऑफ लाइसेंस, टर्म्स, यूज ऑफ प्रीमाइसेस, गवर्निंग लॉज, ब्ला ब्ला ब्ला. इट टेक्स टाइम टू राइट दिस. जब रिपीटेटिव होता है तो गलतियां होती है, क्योंकि नकल में डबल अकल की जरूरत है. कोई मुझे बोला, विवेक तुम जो ऑडिट रिपोर्ट के फॉर्मेट देते हो अपने डॉक्यूमेंटेशन के सेशन में, मैं उसी को अपलोड करूंगा और ये सब फिल डाल दूंगा. हम भाई यह चेंज करना मत भूलिएगा. सो मूविंग फॉरवर्ड, विवेक कुछ अच्छा दिखाओ. ये मेरा एक छोटा सा कोड है. इसमें मैंने क्या किया है कि आई हैड सर्टेन HDFC क्रेडिट कार्ड्स 12 महीना का. मैंने कोड को रन किया कि भैया मुझे HDFC का क्रेडिट कार्ड है, मेरा ये सैंपल था, इसके हिसाब से मुझे पाइथन का कोड दे दो. तो उसने मुझे कोड दिया, मुझे बोला यहाँ पर भैया सेलेक्ट करो कहाँ पर आपका HDFC का क्रेडिट कार्ड है. मैंने गया, आई हैव सिलेक्टेड ऑल द कार्ड्स.
क्या चीज? PDF। क्यों पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, मैंने पासवर्ड भी डाला है ना मैम। दिस इज एक्सेल, दिस इज HDFC का सॉरी। हाँ ये जुपिटर में कर रहा हूँ सर। ये आप किसी में कर सकते हो जिसमें आपको सहूलियत है। मैंने क्या किया, मैंने उसको बोला भैया ये 12 महीने का HDFC कार्ड है, उसका ये पासवर्ड है, उसको मर्ज कर दो। उसने मुझे मर्ज फाइल एक दिया, मैंने इस मर्ज फाइल को डेस्कटॉप में सेव किया। 12 महीने का क्रेडिट कार्ड का पासवर्ड प्रोटेक्टेड फाइल मर्ज किया, डेस्कटॉप में सेव किया। 12 महीने का फाइल मर्ज होकर 37 पन्ना का एक कंबाइंड डॉक्यूमेंट बन गया, 34 पन्ना का। अब मैं जाऊंगा भैया एक्सेल में इसका ट्रांजेक्शन जो है मुझे एक्सेल में दे दो, मुझे इतना नहीं आता है। तो HDFC एक्सेल, बोला मर्ज फाइल कहाँ है, मैंने उसको बोला मर्ज फाइल यहाँ है। कहाँ सेव करना है? डेस्कटॉप में सेव करना है। HDFC क्रेडिट कार्ड एक्सट्रैक्ट बोलते हैं। सो मैंने ये 12 महीना था, 10 साल की क्रेडिट कार्ड का डिटेल है, आपकी हिस्ट्री है। 10 साल का मर्ज करके आप एक बार में रिव्यू करिए, किस साल कहाँ पर कितना का ज्वेलरी वाइफ को खरीद के दिया, किस साल कितना हमने कपड़े में खर्चा किया है, किसमें क्या खर्चा किया है। हैव अ बेसिक बजटिंग फॉर योर फैमिली और फॉर योर क्लाइंट। दिस इज द ट्रांजेक्शन डिटेल। इसको फर्दर फॉर्मेटिंग आप चाहे तो कर सकते हैं, मैंने जस्ट सैंपल बनाया था तो किया नहीं है। फर्दर फॉर्मेटिंग इसको ऑल्ट एंड एंटर, इसको सीधा दिया स्टेटमेंट डेट, किस महीने में कितना का बिल आया था बता देना भैया। जस्ट अ सैंपल, कितना सेकंड लगा सर? अलग अलग क्रेडिट कार्ड के लिए अलग अलग ट्रेनिंग। आज एक बच्चे को बोलते हैं, एक क्लाइंट का एक ट्रेनिंग देते हैं हम लोग, प्लानिंग डॉक्यूमेंट बनाते हैं ऑडिट के हिसाब से। अगला क्लाइंट के लिए अलग बोलना पड़ता है। तो अलग अलग क्रेडिट कार्ड के यही कोड दीजिएगा कि भैया ये कोड HDFC के लिए है, ये एक्सिस का नया आया, या HDFC बैंक का भी अलग अलग आपका ये होता है, क्या बोलते हैं, फॉर्मेटिंग होती है। इंसिग्निया हो गया, रिगालिया होगा, जो भी है, तो वो चेंज हो जाता है। अब चीज समझो, वो 4 पन्ना से खोज रहा है कहाँ पर ट्रांजेक्शन है, वो आपको निकाल के दे रहा है। ट्रांजेक्शन के साथ डेट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये जो मॉड्यूल है उस मॉड्यूल के ऊपर है, तो उसको ट्रेनिंग देना होगा। ये मेरा फॉर्मेट है इनपुट, ये मेरा आउटपुट है, बीच का भैया तुम समझो। एंड लाइफ इज बिकमिंग इजी। विवेक एक क्रेडिट कार्ड नहीं समझ पाता, हम कैश पैस खर्चा करते हैं, ये सब मत बताओ, कुछ अच्छा बताओ। आगे बढ़ते हैं। हाँ सर, गूगल कोलैब में हो सकता है, भाई जो भी सॉफ्टवेयर आप, VS स्टूडियो में हो सकता है, गूगल कोलैब। इट्स लाइक समवन यूजिंग गूगल, समवन यूजिंग याहू, समवन यूजिंग ऑफिस 365, समवन यूजिंग गूगल शीट्स। आपको किसमें अपनापन लगता है उसके हिसाब से करिए। सर माइंड यू, ये पाइथन जुपिटर है, ये आपके सिस्टम में है, ये नेट में काम नहीं करता है, ये आपके पास है। वी आर नॉट वर्किंग ऑन इंटरनेट। गूगल कोलैब में वी आर वर्किंग ऑन इंटरनेट, बट जुपिटर VS स्टूडियो में आई एम, दैट्स व्हाई आई वांटेड टू शो बोथ। मैं दोनों दिखाऊंगा आपको। VS स्टूडियो में आप इंटरनेट पे काम करते हो, VS स्टूडियो में लैपटॉप पे काम करते हो, गूगल कोलैब में आप इंटरनेट पे काम करते हो। तो ये डेटा आपका है, आपके पास है, इसमें कोई रिडैक्ट करने की जरूरत नहीं है, कोई ChatGPT की जरूरत नहीं है। तो ये काम तो मैं ChatGPT में अपलोड करता, भैया पढ़ के बता दें, इस पे कुछ नेट पे नहीं है। सर आई गिव यू हम्बल रिक्वेस्ट, 4-5 मुझे वर्कफ्लो दिखाना है, दिखा के लंच में मैं खाली बैठा रहूंगा, सेकंड सेशन में हाफ टाइम में खाली बैठा रहूंगा, डिस्कस करेंगे, नहीं तो मेरे को शाम यहाँ से मार के भगा देगा। I'll just show you some of the toolkit will come. Next is the share evaluation. ये share evaluation क्या है? इसको मैंने बोला भैया ये शेयर है, कंपनी ने इतना तारीख को शेयर खरीदा था, उसका कल का शेयर का वैल्यू के हिसाब से क्या प्रॉफिट है, उसमें आप ये भी लिख सकते हो 31 मार्च के शेयर के वैल्यू के हिसाब से क्या प्रॉफिट है, इस डेट पे खरीदा था, इसके बाद कब कब डिविडेंड दिया गया, कितना डिविडेंड मेरा बनता है मुझे बताओ। सैंपल को रन करते हैं।
ये थोड़ा हैवी है क्योंकि ये नेट पे सर्फिंग कर रहा है, नेट से ये वैल्यू निकालता है, तो दिस विल टेक सम टाइम। गिव मी, मैं इसको रन करके छोड़ देता हूँ, बैकड्रॉप में जब चालू होगा एक तो आ गया। हाँ, ये मुझे पूछ रहा है बताइए आपका शेयर का डिटेल कहाँ है। मैं अगेन वाइट कोडिंग में गया, शेयर डिटेल्स में गया, भैया शेयर डिटेल्स ले लो। अब ये इसको रन करेगा, नेट में खोजिएगा क्या करके इसका वैल्यू था, क्या मार्क टू मार्केट में मुझे प्रॉफिट बुक करना है, या हम इंडियस की अगर क्लाइंट्स के आते हैं, व्हाई इट इज हेल्पफुल फॉर मी, आई वर्क विद लॉट ऑफ एनबीएफसीज जहाँ पर 3000, 4000, 5000 स्क्रिप्ट होते हैं। खरीदारी इस दिन किया, बेचा इस दिन, कितना डिविडेंड आया। विवेक वो तो जो हमें आता है फाइल्स पीएमएस का या मेरे डीमैट का, वहाँ भी मालूम पड़ जाता है, सब मालूम पड़ जाता है, मगर हमें ऑडिट सिखाता है, ऑडिट नॉट डॉक्यूमेंटेड इज ऑडिट नॉट डन। तो अपना डॉक्यूमेंटेशन अपने से करिए। तो मैंने क्रॉस चेक कर दिया, कभी कोई शेयर्स मेरे पास था, कभी नहीं था। डेस्कटॉप में मैं आउटपुट लूंगा, शेयर फाइनल। ये मैंने जो स्क्रिप्ट लिखा था इट इज ओनली फॉर एनएससी शेयर्स, तो कोई बीएससी शेयर्स होगा वो नहीं दिखाएगा। अगर स्क्रिप्ट को मैं चेंज करता तो दिखाता। जस्ट चेक इट आउट। पहले विवेक इनपुट क्या था बताओ। दिस वाज द इनपुट, शेयर डिटेल्स, ये इनपुट था। स्टॉक डेट, बाय डेट, सम ऑफ ओपन क्वांटिटी, रेट कितना में खरीदा, टोटल बाय वैल्यू। आउटपुट क्या बताओ, ऑल द HUI, 1 सेकंड, ऑल द HK। हाँ, ये डिटेल थी, बाई 12/6 को खरीदा था, इतना पीस इस रेट पे, टोटल बाय वैल्यू इतना था। एनएससी का सिंबल ये है, ये शेयर एनएससी में नहीं है। ओके, बीकेटी में जाते हैं, लास्ट क्लोजिंग वैल्यू 2319 का है, टोटल फेयर वैल्यू इतना है, मार्क टू मार्केट में इतना का लॉस हुआ, 4 रुपये का डिविडेंड दिया गया था। ये डेट फॉर्मेट होगा इसलिए डेट नहीं दिखा रहा, इसको चेंज कर देते हैं, ऑल एच एन शॉर्ट डेट। इस दिन डिविडेंड अनाउंस दिया गया था, एक्स डिविडेंड हो गया 40 रुपये। ये इस दिन डिविडेंड डेट था, इतना का डिविडेंड मिला होगा आपको 4 रुपये के हिसाब से। सर बोनस शेयर आते हैं तो आप कोड में लिखिए बोनस कब इशू किया वो भी बताएगा, राइट इशू कब किया वो भी बताएगा। आप चीज समझिए, जो आपकी रिक्वायरमेंट है वही आप बोलोगे। आप अपने स्टाफ को अगर नहीं बोलोगे भैया ये पढ़ के आओ, वो पढ़ के आएगा, नहीं पढ़ के आएगा। तो जो आप क्लैरिटी से बोलोगे वही इनपुट वो लेगा, और जो क्लैरिटी से आउटपुट आपको चाहिए वही आउटपुट वो लेगा। बीच का हमको नहीं जानना है, दैट इज कॉल्ड वाइट कोडिंग। वाइट कोडिंग भैया अंदर में क्या, आई डोंट वांट ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, I don't want to know what is the inside. I want, this is my input, this is my output. I can check the output. आउटपुट को चेक करने की क्षमता होनी चाहिए, इन द सेंस प्रोविजन होना चाहिए। नहीं तो वो जो श्याम भाई बोलते थे हाइलोसिनेशन, सुमित भाई बोलते थे, वही होते रहता है। ख्याली पुलाव बचपन में बोलते थे हाइलोसिनेशन को। साल में जब जब डिविडेंड अनाउंस करेगा 3 पकड़ेगा, 3 बार दिखाएगा, 3 लाइन आइटम आएगा। एंड अगेन इट्स ऑन योर कोड। आप कोई अगर कोडर को भी दोगे, कोडर को कोडिंग आता है, उसको अकाउंटिंग नहीं आता है, ही इज नॉट अ डोमेन एक्सपर्ट, वी आर द डोमेन एक्सपर्ट। आप बोलो भैया मल्टीपल टाइम डिविडेंड दिया होगा तो अलग अलग लाइन आइटम बता देना। सो माय ओनली पर्सन ओवर हियर, जस्ट इमेजिन ये काम कितना आसान हो जाता है। अगर ये 2000 लाइन आइटम होता तो नेट में सर्फिंग करके वहां से डिटेल निकाल के आपको दे रहे। नेक्स्ट वीडियो कुछ अच्छा बताओ, ये सब मजा नहीं आ रहा यार। चलते कुछ नेक्स्ट सैंपल में। होम देखते हैं इसमें आप लिखे, हाँ सेल्स एनालिसिस करते हैं। टैक्स ऑन पैकेज विद लेट्स सी वेयर इज माय SAP audit module back 26 years। दिस इज अ 26 AS जिसमें हम खाली PDF अपलोड करेंगे। इसको सिंपल सा रन करेंगे, नीचे में जाएंगे, फिर नीचे क्या बीच में क्या लिखा है हमको नहीं मालूम सर, हम वाइट कोडर है, मैं इंजीनियर नहीं हूँ। ऑल्दो मैंने थोड़ी कोडिंग सीखी थी जब मैंने लास्ट ईयर बिजनेस एनालिटिक्स किया था, 1 साल का कोर्स IIM कलकत्ता से, तो पाइथन सीखा था। उसमें फायदा ये हुआ, मुझे मालूम है पाइथन में कौन सा लाइब्रेरी किसके साथ काम करेगा। PDF प्लम्बर काम करेगा कि PDF स्कैनर काम करेगा, OCR टेक्नोलॉजी कौन सा अच्छा है। तो दैट बेसिक अंडरस्टैंडिंग इज देयर, बट आई डोंट वांट टू बग यू अप विद ऑल दैट बेसिक डेटा।
desktop. Where is my coding? Share credit card. 26. This is a sample 26 AS. मैंने खाली अपलोड कर दिया और मैं अपने चाय की कॉफी में जिसको जो पसंद है वो पीने लगा और फिर ये पाइथन कोड उस 26 AS को रन करके एनालाइज करके मुझे रिपोर्ट दे दिया। चाय बनानी नहीं था दिन में। चलिए देखते हैं क्या आउटपुट दिया। 26 AS देखे हुए क्या होता है, कैसा होता है। इसने मुझे बेसिक नाम बताया, फिर ट्रांजेक्शन का डिटेल दिया, किस क्लाइंट का क्या टैन नंबर है, क्या टोटल अमाउंट है, कितना डिडक्ट हुआ, कितना डिपॉजिट हुआ, कितना सीरियल नंबर है, क्या ट्रांजेक्शन है। ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन जो दो लाइन में आता है उसने एक लाइन में दिया। डेट वाइज समरी, किस डेट में कितना अमाउंट पेड हुआ, कितना टैक्स डिडक्ट हुआ, कितना टीडीएस डिपॉजिट हुआ, क्या रेट से टीडीएस काटा था। पार्टी वाइज, किस पार्टी ने 10% के हिसाब से काटा, किसने 10.14 से काटा, तो क्यों काटा, एक इनवॉइस पे बेसी या कम काटा, किसी का क्या रेट पे काटा, किसी का 1% में काटा, किसी का डिफरेंट रेट्स है तो क्यों है। किस महीना में किस पार्टी ने कितना किस महीना में टोटल नंबर ऑफ यूनिक पार्टीज ने कितना ट्रांजेक्शन हुआ था, कितना अमाउंट काटा, कितना टीडीएस डिडक्ट हुआ, कितना डिपॉजिट हुआ, क्या रेट था। इसके साथ साथ सेक्शन वाइज समरी, किस सेक्शन में मेरा कितना टीडीएस कटा, व्हाट वाज द टोटल अमाउंट पेड, व्हाट वाज द टीडीएस डिडक्टेड, व्हाट वाज द टैक्स डिपॉजिटेड, व्हाट इज द ओवरऑल समरी। 26 AS एनालिसिस विद इन 10 सेकंड्स। मैंने एक क्लाइंट ने मुझे चैलेंज किया, ये 26 AS की कहानी क्या है। हमारे EISC में आदित्य महेश्वरी जी ने अभी पाइथन का कोर्स कराया था। सो आई वाज वन ऑफ द फैकल्टी ओवर देयर। सो इन दैट पाइथन फैकल्टी समवन टोल्ड मी, विवेक मैं 3 महीने से कोशिश कर रहा हूँ, ये बन नहीं रहा है। मैंने बोला दीजिए, मैं बोला इसमें जो मैंने बताया मॉड्यूल काम आता है। मैंने PDF प्लम्बर खाली लिखा, 2 मिनट में उनके सामने ये कोड बना था और रन हुआ था फर्स्ट ट्रायल में विदाउट एनी डिबगिंग, एंड दिस वाज द आउटपुट। फिर क्लाइंट के पास गए, 40 पेज का 26 AS था, उसको मैंने डेमो दिया। जस्ट इमेजिन हाउ हैप्पी दैट पर्सन वुड बी। हाँ, मैंने 25,000 पर चार्ज भी किया था इसका। बट आई एम सेइंग AI consultation is also a future, automation is also a future, and if you know basics of Python, because as I am saying, sir, वाइट कोडिंग है, मुझे अंदर क्या हो रहा है मालूम नहीं करना है, मुझे इनपुट मालूम है, I know the output, and the rest of the work is done by generative AI. That's the power of generative AI. This 26 AS was decent, मोटा मोटी काम करता है। How many of you love to love? I love PDF. मत करिए, डेटा अपलोड कर रहे हैं आप सर। विवेक क्या करें, जाइए HTML में, बोलिए मुझे एक छोटा सा कोड दीजिए, जाइए ChatGPT में, क्लाउड में, मुझे एक पाइथन का कोड दीजिए। पाइथन नहीं चाहिए, HTML में जाइए, मुझे HTML का कोड दीजिए, मुझे कन्वर्टर बनाना है। विवेक कैसा बनता है, कुछ इस प्रकार से बनती है। PDF यूटिलिटी 2.0। फाइल को यहाँ ड्रॉप करिए, मर्ज करिए PDF को, स्प्लिट करिए, मुझे 2 पेज निकाल के दो, कंप्रेस करिए PDF को, बहुत आराम में अपलोड करते 2 MB से नीचे होना चाहिए फाइल। एक्सट्रैक्ट करिए, पेज नंबर 1, 3, 5, 7, 10, 15 निकाल के दो मुझे इसमें से। PDF का इंफॉर्मेशन दीजिए, कौन बनाया था, क्या बनाया था, कन्वर्ट करिए PDF to Word, Word, Excel, whatever, what not। क्या किया मालूम है, आई लव PDF का लिंक पे गए, क्लाउड में गए, give me a HTML file for PDF utility named VF PDF with all the features given in this website। Sir, it's free or paid? Sir, free। पैसा का बात नहीं करते, पैसा खाली कॉन्फ्रेंस में लगता है। So, in the meantime, white coding का, how many of you, anyone from marketing domain, marketing? ऐसे मन किया, ऑरा बोल के कुछ चल रहा मालूम है आप लोग को? ऑरा नहीं मालूम? CA इंस्टीट्यूट अपने आर्टिकल्स के लिए ऑरा बोल के कोर्स कर रहा है AI का। एंड मैंने एक कोड लिखा, भैया मुझे निकाल के दे, ऑरा किड्स, एक मुझे बॉटल लॉन्च करना है और मुझे इस तरह से इमेज दे। White coding. You want to launch anything? You want to have anything? नया इनकम टैक्स का बजट आया है, अपलोड करिए, मुझे 5 हाईलाइट बना के दीजिए, एक PPT बनाना है। विवेक, तुमने थोड़ा देर पहले VB कोड के बारे में बोला था,
कुछ भी करना है, इस रो में ये है, इस रो में ये है, इस कॉलम में ये है, इस कॉलम में ये है, इस कॉलम में मुझे ये चाहिए, इसका VBA कोड दो। जैसे बहुत होता है, आई हैव टू हैव मल्टीपल शीट्स, ऑल शीट शुड बी annexure 1 2 3 4 5 6, फर्स्ट शीट शुड बी समरी ऑफ दोस शीट्स विद अ हाइपरलिंक टू हिज शीट्स। बनाते हैं आपके सामने 10 सेकंड में। गिव मी अ VBA कोड to create 20 sheets in workbook of Excel and name each sheet as A1, A2, one second, A3 and so on. Gives me a summary sheet of same with hyperlink and also give me link to go back to summary sheet in D1 of each sheet। देखते क्या करता है। एक और चीज, ये करता नहीं है, ये बताता भी है कोड को कैसे यूज करो। नीचे में देखा, go to Excel sheet, type all plus F11, copy this, run this, and then so on. Let's see what this VBA code does for me. क्या लिखा है नहीं जानना है, खाली Control C, नीचे में दिया क्या कैसे करना है। I'll just open the Excel sheet. I hope I have written over here Excel. No. Just change this 1 second. So there was a spelling here. In MS Office. The wake the input, the wake is output. In the meantime, क्या हुआ, बहुत सारे लिस्टेड बड़े बड़े CA फॉर्म्स का नेफ्रा का इंस्पेक्शन रिपोर्ट आया। सब इंस्पेक्शन रिपोर्ट को पढ़ने बोला गया, सिखाना है टीम को। So I uploaded all the inspection report. Now tell me what are the findings in this NEFRA reports and create the Excel sheet as a checklist so that whenever NEFRA comes for inspection in my form, they will not get this finding. भैया बचपन में सीखा है, दूसरे की गलती से आप सीखिए ताकि आप वो गलती ना करें। Copy code. I hope this will run. Yes. Alt F11 मत पढ़िएगा, मैं ऐसे कर Control V run created sheets A1 to the okay no not done. This is not working. Let me work on that. In the meantime, 26 days मैंने दिखा दिया, लाइसेंस एग्रीमेंट। ये मैंने अभी वहाँ बैठ के मैं लिख रहा था जब कि ये मुझे क्लॉथ से मैंने बनाया था HTML वाला फाइल। Gemini is okay, Group is okay. I'll show you some more sample in the meantime. Yes, sales is the analysis. I have got 3 minutes, I suppose. Thank you. Thanks a lot. Sales analysis. I hope यही हो। Let me check. मैंने एक डमी डेटा बनाया 1 लाख लाइन आइटम का और उसको रन किया। 1 lakh dummy data of line item of a FMCG company
So it will ask me just upload the sales register, and once you have uploaded the sales register, it will analyze that, do the ABC analysis, कौन से एरिया में कितना माल बिका, लास्ट 10 साल में कितना माल बिका, and all. Browse over here, you just upload the sales register for which you have made this white coding, sales analysis, Python sales input. Now तकरीबन 1 लाख लाइन आइटम है, उसको ये स्टडी करेगा, उसका ABC एनालिसिस करेगा एंड इट विल गिव यू आउटपुट। विवेक, इससे क्या होगा, आप जो भी कंटेंट ऑडिट करते हैं, whatever you are doing as a bank branch auditors, whatever repetitive work you are doing in your office, just think of it. इसलिए मैंने पहला काम क्या दिया था? Note down the repetitive Come on friends, work. lunch is there, I know. Give me 5 minutes. पहला काम क्या था? Note down the repetitive work. Note down all the repetitive work which is there in your office. Why? उसको सबसे पहले हम ऑटोमेट कर सकते हैं। उसको सबसे पहले हम ऑटोमेट कर सकते हैं। Whether you are doing ROC work, whether you are doing income tax, and whether you are doing whether income tax का reply and all, we all know without hallucination. But the repetitive work, how you can do, that is using all this. Again, 1 लाख लाइन आइटम और एक लाइन में तकरीबन 10 से 15 आइटम है, so this 74% done. And the best part is, मैंने इनपुट दिया, it will give you output. No brain application. विवेक ब्रेन डेड हो जाएंगे। 89 done. Saving Python sales access to Python, then it will run the codes on the background. Importing pandas as PD and NumPy as NP. These two are the libraries which has been used for this code, and from this library they will go check the invoice date, and in the meantime I will just show in between. I have also made the HTML for this. Sales analysis 2, ये उसका HTML है। क्या होगा, फाइल अपलोड करिए, data validation, pivot analysis, price analysis, customer insights, time series. It will give you all that, and this is again I have only uploaded the Panda code, that is the Python code. भैया इसके बेसिस में एक HTML बना दो। Done. Executing, it is studying the files, doing the analysis, the output is okay. मैंने एक सेल्स अपलोड किया, उसने मुझे बताया कि I know you are all getting restless. 2 minutes. Last example. वेस्ट बंगाल में ई-कॉमर्स में कितना सेल है, जनरल ट्रेड में कितना है, एंड मॉडर्न ट्रेड में कितना है. दिस इज द ट्रेंड एनालिसिस. कब कब किस में कितना सेल किया गया. दिस इज द कस्टमर एपीआई. कौन सा मेरा कस्टमर कितना माल मुझसे लिया, कितना इनवॉइस था, कितना क्वांटिटी था, कितना
सेल्स था, कितना एवरेज बिल साइज था. दिस इज माय आइटम बाय सेल, ग्रुप पाइथन, इंगेज पाइथन, एक्स पाइथन, ये सब माल बिका. और cumulative sales इतना है, what is the percentage of that, and if any duplicates are there. Closing remarks. Vibe coding basic understanding किसको हुआ? What is vibe coding? किसी को नहीं हुआ? विवेक, Python क्या क्या चीज में यूज हो सकता है? I'll just show you one folder of mine. Python JE working, that is journal entries का checking. Opening balance less than 12 यूजर, कोई यूजर 12 से कम एंट्री मारा है तो वो यूजर कभी कभी मारता है CFO टाइम्स, तो उस वाउचर में कुछ गड़बड़ हो सकता है. कीवर्ड एंट्रीज किसमें लिखा हुआ? फ्रॉड, पेनल्टी, CMO, एडवाइस ऑफ CMD, ED, इशू हो सकता है. रिकरिंग डिजिट्स, मैनुअल एंट्री इन रेवेन्यू लेजर, मैनुअल एंट्रीज इन कंजम्पशन लेजर. पब्लिक हॉलीडेज के दिन एंट्री मारा गया, किसने पब्लिक हॉलीडे में एंट्री मारा है? GST में we all know the GST data extraction, GSTR1 का extraction. So this is some of the way which can in vibe coding which can make your life simple. Open for any questions. No question? भूख लगी है? Thank you everyone. You can sit for 1 minute. I think it's completed. Let them close the session first. 1 minute if possible. And friends, don't forget to follow the go to the exhibition center जहाँ बहुत अच्छे स्टॉल्स लगे हुए हैं. Yes sir. दे दूंगा सर. अगर किसी को अगर कुछ भी और समझ में नहीं आता है, you can connect with me. ये मेरा LinkedIn कनेक्शन है, you can just connect with me on LinkedIn. I'll show you whatever is required.